Hello, everyone, and welcome back to our channel, Insights for You. And in continuation to our series of knowledge and awareness, as promised, we are back with another episode with our guest, Dr. Sween Saini. So, in our last discussion, we were talking about ASD, Autism Spectrum Disorder. So Dr. Saini talked about what exactly is ASD, what are the kind of red flags that the parents or caregivers should watch out for, what are the kind of what's the kind of environment they should have for a child who is facing this challenge of ASD. So in continuation to our conversation, we continue to speak about the same thing, and we'll talk about the kind of help that these parents can get. Who are the kind of experts that they should reach out to? So, thank you, Dr. Saini, for joining us back for another round of discussions on this topic. So, a warm welcome to you. Thank you. It's my pleasure, Neha, to be in the second episode of the same topic because as we are celebrating World Autism Awareness Day, it is our moral responsibility to spread awareness about this topic because still there are so many myths and stigmas attached to this condition. We wish that stigma should be broken by each and every individual of the society. And thank you for taking this incredible initiative through inspiring insights. Thank you so much, ma'am. So, starting with the conversation for today, we've talked about what is ASD and the kind of red flags that parents should watch out for. So, how is autism, clinically diagnosed, and what are the kind of assessments or tests that these parents, these caregivers should go out or reach out for? Okay. Yeah, because we already talked about symptoms and diagnosis. And now when we talk about the clear clinical diagnostics, so it is about whenever your child falls on the spectrum, getting an autism diagnosis is a two-stage process. And it starts with your pediatrician. हमें पता ही नहीं होता कि हमारा मेडिकल फिजिशियन जो है, फैमिली फिजिशियन जो है, वो भी इसमें हेल्प कर सकता है. So they are the first step in the autism diagnosis process because हर एक जो ऑटिस्टिक बच्चा होता है, ये स्पेक्ट्रम पे फॉल कर रहा होता है, उसको हम 18 to 24 months के चेकअप्स में ही फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है. So either they are on track or they are having some symptoms. ये क्लैरिफाई होना शुरू हो जाता है एक एक्सपर्ट फिजिशियन को. सो जब हम फिजिशियंस को विजिट करते हैं फैमिली और बच्चे के साथ, तो दे वॉच देम एंड टॉक टू देम. दे विल आस्क फ्यू क्वेश्चंस टू द पेरेंट्स आल्सो अबाउट फैमिली हिस्ट्री, whether anyone in the family is on that spectrum already, or about your child's development and behavior. So जो पेरेंट्स को ऑनेस्टली पिक्यूलियर तरीके से बिहेवियर ऑब्जर्व करके बताने होते हैं, वो कुछ माइलस्टोन्स हैं जो डॉक्टर्स पूछते हैं. लाइक बच्चे ने 6 महीने में स्माइल करना शुरू किया कि नहीं, बच्चे का जो 9 मंथ्स तक एक एक्सप्रेशन होता है, मिमिक साउंड्स और फेशियल एक्सप्रेशन, वो क्लियर है कि नहीं, उनकी जो साउंड क्लैरिटी है विद बैबलिंग एंड कुइंग, जो हम छोटे एज में बच्चों की जो वर्बल वॉइस बोलते हैं, वो 12 मंथ्स तक शुरू हुई कि नहीं हुई. इसके अलावा और बहुत सारी चीजें हैं. फॉर एग्जांपल अनयूजुअल बिहेवियर्स और रेपिटेटिव बिहेवियर्स, जो हमने कल पिछले अपने फर्स्ट एपिसोड में बात की, आई कांटेक्ट बनाने में. तो इसी से रिलेटेड जो फिजिशियंस हैं वो पेरेंट्स के साथ क्वेश्चंस आंसर सेशन करते हैं. बच्चे की सेंसरी जो ट्रिगर्स हैं, बच्चे के जो फ्लैट वॉइस है, बच्चे का जो खेलने का तरीका है, स्लीप, डाइजेशन, मूड स्विंग्स, ये सब के बारे में वो बात करते हैं. और यहाँ पेरेंट्स का एक चीज को ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि देयर रिस्पॉन्सेज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन चाइल्ड स्क्रीनिंग. इफ एवरीथिंग चेक्स आउट एंड यू हैव नो कंसर्न्स, दैट्स द एंड ऑफ. फिर बार बार हमें छोटी छोटी चीजों से उसे कनेक्ट नहीं करना चाहिए. लेकिन अगर बच्चा शो कर रहा है डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स और योर डॉक्टर शोज सम कंसर्न्स, दे विल रेफर यू टू स्पेशलाइज्ड पर्सन फॉर मोर टेस्ट. तो यहाँ फिर सेकंड स्टेज आती है.
So what are these other tests that you mentioned? If you can just give some examples of what kind of tests would a pediatric refer them to? Yes, if your child needs more test, तो parent को next appointment probably लेनी पड़ती है with a team of ASD specialist, है ना? Autism spectrum disorder के जो specialist हैं, जिनमें child psychologist आते हैं, speech language pathologist आते हैं, and occupational therapist आते हैं. एक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स का कोई स्पेशलाइज्ड पर्सन आपके एरिया में हो तो आप या फिर न्यूरोलॉजिस्ट को भी आप पहले मिल सकते हैं. दिस इवैल्यूएशन actually is usually to check things like your child's cognitive level, जिसे हम intelligence बोलते हैं, language abilities and other life skills like eating, dressing themselves and going to the washroom. एक ऑफिशियल डायग्नोसिस के लिए एक बच्चे को उन सारे क्राइटेरिया को मीट करना पड़ता है जो हमारे डायग्नोस्टिक्स एंड स्टैटिस्टिक मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, मतलब जिसे हम प्रोफेशनल लैंग्वेज में DSM-5 बोलते हैं. That is the Gita and Bible for psychiatrists and psychologists. So that is published by American Psychology Association. तो उसमें कुछ fixed criterion दिए गए हैं to diagnose ASD. तो बच्चे को वो उन सारे diagnosis पे criterion meet करने पड़ते हैं related to communication and social interaction, repetitive behaviors. और इसके हिसाब से अगर बच्चा एक पोटेंशियल सिम्टम शो कर रहा है ASD का, the doctor may monitor their development with a new device. आजकल एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑपरेटेड डिवाइस आया है जो डेटा को यूज करता है टू हेल्प डायग्नोस ASD. तो इसीलिए पेरेंट्स की तरफ से दिया गया डेटा वेग अंदाजे के हिसाब से नहीं होना चाहिए. इट शुड बी वेरी पर्टिकुलर एंड क्लियर. इवन डॉक्टर्स may suggest genetic testing to rule out any other conditions that could cause these symptoms. Wonderful. So that's a good use of AI, I would say, that making diagnosis easier for these children. It's Yeah, wonderful. because it is an ongoing process. Research are still going on, studies are still going on, new things are adding up. Even we professionals should be upgraded all the time. I completely agree to that, ma'am. Yeah. So, ma'am, post these diagnoses, post meeting the ASD specialist, what are the kind of therapies or strategies, that can help the caregivers, or they should go for these therapies and strategies for the children? Of course, Neha, thank you for asking this because, we are so much into that tendency of discussing problems only. But we know where there is a problem, it always comes with a solution. So a number of therapies can help people with autism improve their abilities and reduce their symptoms, actually. So starting therapy early, during preschool or before, it improves the chances of your child's success. Every parent should understand that. But it's never too late for treatment, I should say. So there is one organization, American Academy of Pediatrics. They recommend everybody to start to research therapies as soon as we suspect a child has autism, rather than waiting for a formal diagnosis even. So it can take a lot of time, test and follow-ups with specialists to get a formal diagnosis report. तो जब हम थेरेपीज की या ट्रीटमेंट की बात करते हैं, सॉल्यूशंस की बात करते हैं, इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, चाइल्ड टू चाइल्ड. तो यहाँ हम क्विकली थोड़ी सी जो मोस्ट पॉपुलर एंड वेल प्रूवन स्ट्रेटजीज हैं या थेरेपीज हैं उनको हम डिस्कस कर सकते हैं, जिसमें आई पर्सनली रिकमेंड प्ले थेरेपी द मोस्ट, बिकॉज चिल्ड्रन विद ऑटिज्म ऑफन प्ले डिफरेंटली देन अदर किड्स. जो हम अगर अर्ली एज डायग्नोसिस की बात करते हैं, अर्ली एज रेमेडी की बात करते हैं, तो उस वक्त बच्चे के पास कॉग्निटिव स्किल्स नहीं होते इतने, स्पीच भी पूरी तरह से, लैंग्वेज भी डेवलप नहीं हुई होती. सो उसमें सिर्फ एक प्लेइंग का ही मेथड है, एक्सप्रेशन का ही मेथड है, मूड्स ही हैं जो हम फोकस कर सकते हैं. तो हम बच्चे को एक प्रिटेंड प्ले की ट्रेनिंग देते हैं कि किस तरह से बाकी बच्चे खेलते हैं, उसको उस तरह से खेलने के लिए हम एनकरेज करते हैं, है ना. और कई बार ऐसा भी होता है कि दे डोंट वांट टू प्ले विद अदर किड्स, एज वी डिस्कस्ड इन प्रीवियस एपिसोड अबाउट द सिम्टम्स. तो बच्चे ज्यादातर अकेले खेलना पसंद करते हैं, लेकिन
जब हम उन बच्चों को प्ले थेरेपी में डालते हैं तो इससे सोशल स्किल्स ऑटोमेटिकली थोड़े से एनहेंस होने शुरू होते हैं, उनका जो एक हिच है, झिझक है, वो खत्म होनी शुरू होती है। एंड देयर टॉयज एंड देयर एक्शंस दे मे बिकम देयर वर्ड्स आल्सो। तो स्पीच पे काम साथ के साथ ही शुरू हो जाता है। This play therapy can help autistic children to learn and connect with people, either kids or adults. है ना? So play therapy can improve social emotional skills, जैसा मैंने पहले कहा, language and communication skills, और लोगों के साथ उनका एक रिलेट होना भी शुरू हो जाता है। तो बहुत सारी अलग अलग प्ले थेरेपीज होती हैं, फ्लोर थेरेपी, इंटीग्रेटेड प्ले ग्रुप्स, सिंबॉलिक प्ले एंगेजमेंट एंड रेगुलेशन थेरेपी जिसे हम जैस्पर बोलते हैं। सो देयर आर लॉट एंड लॉट ऑफ सब टाइप्स इन प्ले थेरेपीज। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो प्ले थेरेपी के बाद एडिशनल आई वुड लाइक टू हाईलाइट, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट, दैट इज ओटी, जिसके बारे में मोस्टली लोगों को पता होता है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी। ऑक्यूपेशनल थेरेपी जो है वो लर्निंग डिसेबिलिटीज में या किसी भी तरह की जो कॉग्निटिव डिसेबिलिटी है उसमें काम आती है ना। तो इसमें हम ज्यादातर बच्चे को ट्रेन किसमें करते हैं, टू बी फॉर्मल विद डेली रूटीन ऑब्जेक्ट्स, लाइक लर्निंग टू बटन ए शर्ट, लाइक होल्डिंग ए स्पून एंड फोर्क इन राइट मैनर। बाकी अदरवाइज एज के हिसाब से अलग अलग एक्टिविटीज से रिलेटेड हर तरह की ट्रेनिंग जो है वो हमारी गोल मैनेजमेंट में रहता है when we talk about OT. So, ma'am, as you mentioned, play therapy, certainly a very, very important thing. And I would to say, not just for autistic children, play is such an integral part of childhood, Yes. and which unfortunately is the screen is replacing that time for a lot of children. बिल्कुल. So, definitely, when we talk about occupational therapy, so what does this occupational therapist actually help or do with these children, or what do they teach them, or how do they manage them? Occupational therapists, they are very, very highly trained professionals and they work as a part of team, जिसमें वो include कर सकते हैं parents को, teachers को and other professionals also. So they help set specific goals for the person with autism, and these goals often involve social interaction, behavior, classroom performance. मोस्टली जो गोल्स होते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन द स्पेक्ट्रम पे बच्चा किस स्केल पे आ रहा है, प्लस उसकी एज क्या है और उसकी डेली रूटीन की डिसफंक्शनैलिटीज और उससे जुड़े हुए डिस्ट्रेस क्या है। सो इट इज पर्सन टू पर्सन इंडिविजुअल अप्रोच set by a team of professionals. I see. So quite an important role that they play in making their lives easier. So, ma'am, apart from play therapy and occupational therapy, what kind of other therapies or strategies can help these children? Yeah, because see Neha, it is very important कि जितने भी थेरेपिस्ट काम करते हैं, बिकॉज इसमें और बहुत सारी टीम इन्वॉल्व रहती है, हमारा मेन मोटिव रहता है टू टेक केयर ऑफ अटेंशन स्पैन एंड स्टेमिना, ट्रांजिशन टू न्यू एक्टिविटीज, बिकॉज इन बच्चों के लिए ट्रांजिशन एक बहुत बड़ा कंसर्न है। आई होप एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड दैट टर्म ट्रांजिशन, व्हेन सम सर्टेन चेंज इज हैपनिंग either in body or in scenarios or places or schools or classmates. So जब भी बच्चे की लाइफ में कोई चेंज एनकाउंटर होता है, एक नॉर्मल बच्चे से ज्यादा ये बच्चे ट्रिगर हो जाते हैं। दे आर वेरी वेरी फेसिंग हार्ड टाइम एक्सपीरियंसिंग चेंज। तो सबसे ज्यादा ये दो चीजें इंपॉर्टेंट रहती हैं बच्चे का, फिजिकल एंड इमोशनल मेंटल स्टेमिना, अटेंशन स्पैन एंड ट्रांजिशन टू न्यू एक्टिविटीज। उसमें उनको हमें टाइम देना पड़ता है। प्ले स्किल्स इंप्रूव करने की हम बात कर चुके हैं, तो responses to touch and other kinds of stimuli, motor skills, posture, balance, manipulation of smell, objects, बहुत सारी चीजें हैं जिसके लिए ऑक्यूपेशनल थेरेपी और प्ले थेरेपी के कॉम्बिनेशन में हम लोग इसको एक मेन स्ट्रीम काइंड ऑफ ट्रीटमेंट मानते हैं। ठीक है ना। तो जितने भी आपने हमने पिछली देर में बात की है, वर्किंग ऑन दिस स्किल्स ड्यूरिंग ओटी, a child with autism condition may develop certain abilities. इसका मतलब ये नहीं है कि हम कंडीशन क्योर कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम उनके डेली रूटीन की जो डिसफंक्शनैलिटीज हैं और उससे जुड़े हुए डिस्ट्रेस हैं उनको हम कम कर पा रहे हैं। Right, so quite an important role.
So, ma'am, how can parents reach out to these, occupational therapists in their respective locations? What are the kind of correct places to look out for these occupational therapists? Yes, occupational therapy services are available privately through a state-wise early childhood intervention programs or even at schools. Few schools, they have even launched their own centers, which are inclusive schools. Though it is very rare in India. India में थोड़ा सा inclusiveness का भी अभी बहुत सारा issue है. But public law requires schools to provide certain types of occupational therapy to people who need it. कुछ प्राइवेट इंश्योरेंसेज और आल्सो अवेलेबल टू कवर ओटी एक्सपेंसेस. मेडिक एड है, वो भी हमारी ऑक्यूपेशनल थेरेपी को कवर करती है फॉर ऑटिज्म, इवन फॉर फैमिलीज विद हायर इनकम्स. जो स्कूल बेस्ड ऑक्यूपेशनल थेरेपी है दैट यूजुअली वर्क्स टू कॉम्प्लीमेंट एजुकेशनल गोल्स, जैसे हैंड राइटिंग की इंप्रूवमेंट हो गई, थोड़ी सी स्पीच और वर्बल हो गई, एकेडेमिक्स को ज्यादा देखते हुए. ओके, प्राइवेट थेरेपी जो है वो ज्यादा इंटेंसिव होती है, वो सारा ऑल ओवर जो हमारा परफॉर्मेंस है उस पर ध्यान दिया जाता है. इन इंडिया आई एम लिटिल बिट डिससेटिस्फाइड कह लो, या मुझे जिसमें कि पूरी तरह से इतनी कंटेंटमेंट नहीं आती है व्हेन एवर वी यूज टू विजिट वेरी डिफरेंट ऑक्यूपेशनल थेरेपी सेंटर्स, क्योंकि कुछ ना कुछ उसमें अभी भी रिफॉर्म्स की और टीम्स की जरूरत, जहां मैं कहूँगी. लेकिन यहाँ मैं आज एक, आपने ये बात पूछी है तो मैं मेंशन करना चाहूंगी कि आई एम सो फॉर्चुनेट कि वी आर कनेक्टेड विद सच एन ऑर्गेनाइजेशन, केयर फॉर ऑटिज्म, जिनका सेंटर यहाँ जलंधर में है और रिसेंटली हमने उसकी एक ब्रांच लुधियाना में भी खोली है. सो दैट ऑर्गेनाइजेशन, what I observe and feel, it gives a complete management program because it has been founded and induced by a team of two professionals. आपने सुना ही होगा कि नीड इज मदर ऑफ इन्वेंशन, है ना? तो यहाँ पर्सनल रीजन भी रहा और प्रोफेशनल रीजन भी रहा. तो एक पर्सन जो इस टीम में है, मिस्टर रघु बहल, बिकॉज ही इज ए फादर टू ऑटिस्टिक चाइल्ड हिमसेल्फ. और कुछ साल पहले उन्होंने, बहुत ही यंग था बच्चा जब उन्होंने अपनी वाइफ को खो दिया, शी डाइड. तो सिंगल पेरेंट की तरह एक ऑटिस्टिक चाइल्ड को ग्रो अप करना, और जब तक उनकी वाइफ थी उन दोनों को इतनी मशक्कत सहनी पड़ी कि उनको एक राइट कॉम्बिनेशन ऑफ थेरेपीज और ट्रीटमेंट कहीं एक जगह पे नहीं मिल रहा था. सो दे सफर्ड ए लॉट. तो व्हेन ही लॉस्ट हिज वाइफ, ही थॉट ऑफ स्टार्टिंग हिज ओन ऑटिज्म केयर सेंटर, जिसमें उन्होंने एक प्रोफेशनल को साथ लिया, डॉक्टर अतुल मदान, जो कि खुद एक न्यूरो डेवलपमेंटल जो है वो असेसमेंट स्पेशलिस्ट हैं. वो एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट भी हैं, वो एक एडल्ट साइकोलॉजिस्ट भी हैं. तो ये एक ऐसा वेन्यू है जहाँ पे आपको ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट और स्पेशल एजुकेटर, हाईली क्वालिफाइड, हाईली पेड, वो एक ही जगह पे मिलते हैं. तो ऑल ओवर इंडिया से लोग वहां आते हैं बच्चों को लेके. सो नाउ दे हैव रेजिडेंट फैसिलिटी ऑल्सो, ताकि पेरेंट्स को थोड़ा सा और सुकून मिले. इसको हम ट्रीटमेंट सेंटर से ज्यादा ट्रेनिंग, अवेयरनेस, एम्पावरमेंट सेंटर मानते हैं, क्योंकि यहाँ पेरेंट्स की ट्रेनिंग की जाती है ताकि लाइफ लॉन्ग वो किसी ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट पे या टीम ऑफ थेरेपिस्ट पे डिपेंडेंट ना रहे. और फिर धीरे धीरे बच्चे को भी सेल्फ सफिशिएंट किया जाता है. वंडरफुल, दैट्स क्वाइट अ वे ऑफ एम्पावरिंग पीपल कि हर समय आप दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे. व्हाटएवर कैन बी ट्रेन्ड, एंड हु बेटर देन अ पेरेंट टू Yes. act as a trainer for their children. So that's a beautiful initiative, I must say. So ma'am, हमने occupational therapy को समझा, but we've seen that children who lie on the spectrum often have speech difficulties. Verbal, non-verbal communication एक बहुत बड़ा challenge pose करता है for a lot of children. So Definitely. OT, play therapy, does it really cover, or is there any other part of therapies that is to be taken care, that takes care of this part of the problem? Yeah, makes sense, dear, because it is very important aspect of this spectrum, जिसमें हम लोग बहुत ऑब्जर्व करते हैं कि चाइल्ड इज हैम्परिंग इन स्पीच, और उसके लिए एक अनदर सेट ऑफ थेरेपी होता है जिसे हम स्पीच थेरेपी बोलते हैं. सो
people with ASD, they have major problems with speech and non-verbal communication. We already discussed about it. And they also find it very hard to interact socially. वो भी हमने discuss किया. So in reasons की वजह से हमें speech therapy regular इस remedial person process का हिस्सा रखना पड़ता है, because it helps children with speaking as well as communicating and interacting with others. And it can also involve non-verbal skills like making eye contact, taking turns in a conversation, and using some expressive or understanding gestures. This speech therapy also helps kids to express themselves using picture symbols, जिसको हम pictorial representation बोलते हैं, sign language, or with technical help like computers, iPads, and digital media. तो इस तरह से स्पीच एनहेंसमेंट का प्रोग्राम एक अलग प्रोफेशनल ग्रुप के साथ किया जाता है. Right. So मैम, what really is the best time कि जिस समय पे इस speech therapy के ऊपर parents को work करना चाहिए, और they should look out for a speech therapist around what age of the child? Depend करता है person to person, because about 1 in 3 people with autism, they have trouble producing speech sounds to effectively communicate with others. So हमें age slab भी देखनी पड़ती है कि एक milestone बच्चे ने speech का cover किया कि नहीं किया. कई बार क्या होता है कि person with autism may not talk at all. कुछ बच्चे जो हैं वो ज्यादा रोते हैं, crying is their own language. कुछ बच्चे जो हैं वो harsh और heavy sounds create करते हैं, कुछ हम करते रहते हैं, कुछ बेबल करते हैं, कुछ वर्ड लाइक साउंड्स को. कुछ लोग बच्चे तो रोबोटिक स्पीच ऑर्डर में बोलते हैं. वो पर्टिकुलर लगता है जैसे उनका एक अलग तरह की टोन, अलग तरह की साउंडिंग, फॉरेन साउंडिंग वॉइस है. सो रिपीट करते हैं पैरट की तरह. तो जिस तरह से पेरेंट्स को जब हम एजुकेट करते हैं तो हम यही बोलते हैं, अवेयरनेस वीडियोस में भी हम बार बार यही बोलते हैं, आर्टिकल्स में भी यही बोलते हैं कि आपको जैसे जैसे कुछ भी अनयूजुअल सिम्टम्स लगे, डोंट वेट फॉर सम एज स्लैब के तब जाके हम डॉक्टर को पूछेंगे. सो जब भी आपको लगे कि द चाइल्ड इज शोइंग सम अनयूजुअल सिम्टम्स, है ना, तो उसी वक्त हमें डॉक्टर को जो है या किसी प्रोफेशनल को अप्रोच करना चाहिए. Right. So definitely, ma'am, I think because speech is such an integral part, for expressing, to whether it is babbling or completely non-verbal, या unclear speech, या जैसे आपने बताया एक robotic way of speaking, so all of this will definitely hamper their way of expression, right? Yes. So I'm sure speech therapists can play a very, very great role in bringing about that ease in their life. So, ma'am, we've talked about play therapy, occupational therapy, speech therapy. Is there anything else apart from this that can help the parents also? Because I'm sure with so many therapies ongoing, it is going to be very difficult for the parents. So, is there any other treatments also that the parents have to undergo apart from these regular therapies that you mentioned? Yeah, basically you said very rightly that we need some remedies to reinforce, enhance for positive behaviors, and that can be done by teachers, educators, or parents around them. So for that, we come to applied behavior analysis, that is ABA, that is a technique name. This type of therapy जो है वो parents और caregivers को train करने के लिए use की जाती है, ताकि वो autistic child को मोमेंट बाय मोमेंट फीडबैक दे सकें, ले सकें, और एक ब्रिज के रोल प्ले कर सकें बिटवीन प्रोफेशनल एंड द चाइल्ड. सो ट्रीटमेंट गोल्स आर बेस्ड ऑन इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच, जैसे मैंने पहले बोला, जिसमें कम्युनिकेशन, सोशल स्किल्स हो सकते हैं, पर्सनल केयर हो सकती है, स्कूल वर्क हो सकता है. स्टडीज और रिसर्चेस से ये पता चला है वेरी क्लियरली कि जब जो भी बच्चे जल्दी रिसीव कर लेते हैं इस तरह की टेक्निक्स को, इंटेंसिव एबीए कैन मेक ए बिग लास्टिंग गेन. और अगर हम इसके बीच में कुछ टेक्निक्स की बात करें एबीए से रिलेटेड, तो इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स हैं रिलेटेड टू डिफरेंट बिहेवियरल ट्रेनिंग, जिसमें डिस्क्रीट ट्रायल ट्रेनिंग है, वर्बल बिहेवियर इंटरवेंशंस हैं, थेरेप्यूटिक हॉर्स बैक राइडिंग है. यहाँ मैं इसको जरूर मेंशन करना चाहूंगी इस पर्टिकुलर टेक्निक को, बिकॉज डॉक्टर्स आल्सो कॉल दिस हिप्पोथेरेपी. यहाँ क्या होता है कि एक थेरेपिस्ट की गाइडेंस में बच्चे को हॉर्स राइडिंग कराई जाती है. सो राइडिंग इज ए फॉर्म ऑफ फिजिकल थेरेपी बिकॉज द राइडर नीड्स टू रिएक्ट एंड एडजस्ट टू द मूवमेंट ऑफ द एनिमल ऑल्सो. तो सराउंडिंग एनवायरनमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन, अलायंस बनाना, फोकस रखना,
उसको कंट्रोल लेना, तो ये 5 to 16 एज तक के बच्चों को उनकी सोशल स्पीकिंग स्किल्स प्लस एनवायरमेंटल स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए यूज किया जाता है। एंड दिस इज सच ए गुड टेक्निक बिकॉज ये बच्चे को हेल्प करती है टू बी लेस इरिटेबल एंड हाइपर एक्टिव। So these are few techniques where parents and educators are also involved. Yeah. Wonderful. That's quite informative, and I'm sure people struggling with this can definitely find some clues ki what can make their lives easier. Hmm. So, ma'am, एक बहुत simple but a बड़ा difficult at the same time question. Can we prevent autism? Hmm. What do you think? I'm sure Huh. you're the expert. I feel it's difficult because, as Yeah. you mentioned earlier, yeah, I think in our conversation yesterday, that we yet to find out ki what causes autism. So, no, researchers still have no clue Yeah. about कि क्या conditions हैं या किस वजह से ये occur करता है. So, till we know what causes it, prevention again becomes difficult. You don't know what you're preventing against. So, Exactly. but I would still want to So hear your views. yeah, very, very important question, Neha. You mentioned very, very rightly, because while we can't prevent having a child with an autistic disorder, we can increase our odds of having a healthy baby by doing some lifestyle changes. Because अगर आप रिसर्चेस और डाटा लेटेस्ट डाटा देखोगे तो 2015 2020 इस रेंज में ऑटिज्म का रेट ड्रेस्टिकली ग्राफ बढ़ा है। व्हाई? बिकॉज वी ऑल अंडरस्टैंड, नॉट ओनली एट ग्लोबल लेवल, अगर हम अपने स्टेट लेवल पे भी देखते हैं, छोटी छोटी सिटीज में, छोटे छोटे जगहों पे भी मदर्स का लाइफस्टाइल, लिविंग स्टेटस और उनका जो एक टेम्परामेंट है, उनका स्ट्रेस लेवल है, वो सब कुछ बढ़ा है। सो दे हैव स्टार्टेड टेकिंग जंक फूड्स फ्रीक्वेंटली। उनका जो स्ट्रेस लेवल काम को लेके, अर्लियर मदर्स वर एट होम, उनके पास ज्वाइंट फैमिली स्ट्रक्चर होता था। अभी जो एक सपोर्ट सिस्टम है उसकी कमी है, पर मदर के ऊपर वर्क और होम दोनों का प्रेशर ज्यादा आ गया है। तो मूड जो डिसऑर्डर्स हैं, हेल्थ डिसऑर्डर्स हैं, इमोशनल डिसरेगुलेशन है, अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, यूजिंग ड्रग्स, यूजिंग अल्कोहल, स्मोकिंग, जंक फूड एंड सो मेनी मेडिकेशंस गिवन एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। ये बहुत सारी चीजें हैं जिसमें जो कंट्रीब्यूट करती हैं फॉर दैट रिस्क कि बच्चा ऑटिस्टिक हो सकता है। सो हमें हेल्दी लाइफस्टाइल ऑप्ट करने की ज़रूरत है, वेल बैलेंस्ड मील्स लेने की ज़रूरत है, प्रॉपर एक्सरसाइज रूटीन फॉलो करने की ज़रूरत है, गुड प्री नेटल केयर करने की ज़रूरत है, और जितने भी रिकमेंडेड विटामिन एंड सप्लीमेंट्स होते हैं, हेल्दी डाइट को देखते हुए, नरिशिंग को देखते हुए उनके ऊपर फोकस करना चाहिए, रादर देन ब्लाइंडली टेकिंग मेडिसिन सब्सक्राइब्ड बाय गायनेकोलॉजिस्ट। सो मैंने सुना है कि एक ग्लास वाइन से या एक छोटे से अल्कोहल से क्या होता है, कुछ नहीं होता। नहीं, से नो टू दैट ग्लास ऑफ वाइन, स्पेशली इफ यू आर प्रेग्नेंट, है ना। तो जो आपकी एग्जिस्टिंग हेल्थ कंडीशंस हैं, आप उन्हें पहले अप टू डेट करिए बिफोर ब्रिंगिंग दैट चाइल्ड इन योर womb, I will say, even not in the word, in your womb. Yes. So that's really very sound advice, ma'am. Ki before bringing life, one needs to take care of themselves, correct their lifestyle, and it increases the chances of having a healthier baby and preventing autism, as we said. So Yes. that may be one of the things that people can consciously work towards. So with that, ma'am, I would want to ask that a lot of times that parents who are overcautious and for every small thing they may feel that the child has this problem of autism. So are there Hmm. any other conditions, which can be mistaken for autism? Mhm. या बिकॉज यू नो, जैसे जैसे सोशल मीडिया का एक्सपोजर बढ़ा है, एवरी पर्सन हैज रीच टू दैट इंफॉर्मेशन, और वो इंफॉर्मेशन इट्स जस्ट लाइक ए बिग ओशियन, जिसमें कोई भी फिल्टर नहीं लगा है, कोई भी जो चेक नहीं लगा है कि वो राइट है या रॉन्ग है, और कितनी इंफॉर्मेशन किसके लिए कितनी सूटेबल है। तो आज आप किसी भी प्रोफेशनल से बात करोगे तो हमारी फ्रेटर्निटी का एक सबसे बड़ा दुख है कि मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर कमिंग विद सेल्फ डायग्नोसिस, इवन
self framed treatment plan also. तो Self-medication, yes, self-analysis. एनालिसिस। सो जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी बच्चे में स्पीच डिलेज हैं, कोई हियरिंग प्रॉब्लम है, कोई और डेवलपमेंटल डिले है, तो वो बच्चे को हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं कि एक पर्टिकुलर माइलस्टोन तक बच्चा उस टाइम फ्रेम में नहीं पहुंचा, है ना। तो फाइन मोटर इश्यूज किसी बार मसल वीकनेस की वजह से भी हो सकते हैं, इट डजंट नेसेसरी कि वो सिर्फ ऑटिज्म की वजह से हो, है ना। तो सोशल इंटरेक्शन, क्योंकि पेरेंट्स बिजी हैं, उनका कोई सोशल लाइफ नहीं है, बच्चा घर पे अकेला है, बाई के साथ है या फिर डे केयर में है, वहां उसको कोई बहुत ज्यादा इंटरेक्शन का मौका नहीं मिल रहा, ये भी कारण हो सकता है। सो हम कभी भी स्पीच डिले को सीधा ऑटिज्म के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते, चाहे वो ऑटिज्म का एक स्पेसिफिक सिम्टम है ना। सो नैरोड इंटरेस्ट जब हम बात करते हैं, लाइक कुछ बच्चे बहुत चूजी होते हैं, दे आर वेरी चूजी इन सम ईटिंग स्टाइल, और उनके टेस्ट बड़े सिलेक्टिव होते हैं, उनके कलर बड़े सिलेक्टिव होते हैं, उनकी खेलने की एक्टिविटीज बड़ी सिलेक्टिव होती हैं। तो हमें पता है कि हमने कहीं पढ़ लिया कि ऑटिज्म जो है वो अफेक्ट करता है बच्चे को एक नैरो इंटरेस्ट में, तो हम सीधा उसको ऑटिज्म से कनेक्ट करने लगे। बट समटाइम्स इट इज नॉट सफिशिएंट टू रूल आउट कि हाँ बच्चा ऑटिस्टिक ही है। एक दो बार तो ऐसा भी मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ है कि कुछ बच्चे जो हैं वो अपनी उम्र से ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, ज्यादा जल्दी चलना, ज्यादा जल्दी बोलना, ज्यादा जल्दी पढ़ना शुरू कर देते हैं, और किसी तरह से वो अपनी माइलस्टोन से कुछ अबव एवरेज जो है परफॉर्म कर रहे हैं। इवन पेरेंट्स देन फील कि ये बच्चा जरूर एबनॉर्मल है, बिकॉज ही इज अबव दैट स्केल, है ना। Average, above average, even अबव that causes concern. एग्जैक्टली। सो ये भी कंडीशन हमारी जो है वो हैंड इन हैंड जाती है, जिसको हम हाइपरलेक्सिया बोलते हैं। हाइपरलेक्सिया इज एक्चुअली हाई इंटेलिजेंस बट मे बी विदाउट ऑटिज्म। और सेंसरी प्रोसेसिंग इश्यूज, ये भी कई बार जनरली वो न्यूरोलॉजिकल कोई और कंडीशन हो सकती है, बच्चे की कुछ सेंस ऑर्गन सेंसिटिव हो सकती हैं, अंडर डेवलप्ड हो सकती हैं, ओवर डेवलप्ड हो सकती हैं, और अगर उसमें किसी भी तरह की नॉइज को लेके, लाइट को लेके, साउंड को लेके कुछ इरिटेशन या कुछ रेजिस्टेंस है, तो हमें सिर्फ उसे भी एक जो कहते हैं ना कि एक सिंबल नहीं समझना चाहिए कि ऑटिज्म है, लेकिन ये लगने लगता है कि ये ऑटिस्टिक बच्चा है, क्योंकि उसका एक पिक्यूलियर फीचर ये होता है। Right. बहुत सारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी नेहा यहाँ आते हैं, जैसे ऑब्सेसिव बिहेवियर, जिसको हम रेपिटेटिव बिहेवियर बोलते हैं, और फॉर एग्जांपल अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, ओसीडी है, रिएक्टिव अटैचमेंट डिसऑर्डर है, सोशल कम्युनिकेशन डिसऑर्डर है, स्किज़ोफ्रीनिया है, जो कि बच्चों में बहुत कम होता है। तो ये सारी चीजें भी ओवरलैप करती हैं विद सिम्टम्स ऑफ ऑटिज्म। एक अगर कभी बहुत रेयर केसेस होते हैं कि बच्चे ने एक्सीडेंटली लेड जो है वो इनटेक कर लिया, लेड इन एनी फॉर्म, ड्रिंकिंग वाटर में हो सकता है, पेंट चिप्स खा सकता है बच्चा, एक्सीडेंटली उसने कोई ऐसी चीज ले ली जिससे वो लेड एलिमेंट चला गया, दैट कैन डैमेज द ब्रेन। और वो जो डैमेज होता है ब्रेन का, उसके बाद जो बच्चे के बिहेवियर में चेंज आते हैं, वो बहुत सारे सिम्टम्स मैच करते हैं ऑटिज्म के साथ। लेकिन बेसिकली बाय बर्थ बच्चा ऑटिस्टिक नहीं है, अभी सिर्फ बिहेवियरल डिसऑर्डर्स एक पर्टिकुलर कंडीशन की वजह से आ रहे। बाकी कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, ये भी मिस्टेकन हो जाते हैं विद ऑटिज्म। सो दैट्स हाउ अर्ली एज पे अपने पीयर ग्रुप के साथ बात करना, किसी के साथ भी सलाह करके डायग्नोज कर लेना, या फिर इंटरनेट से डायग्नोज कर लेना, वो अवॉइड करके हमें राइट अप्रोच करनी चाहिए थ्रू प्रोफेशनल्स। Very rightly said, ma'am. कि हर छोटी बड़ी चीज के लिए Google becomes the doctor of यस, everyone. So that should be avoided, and you know, should reach out to the experts who can diagnose it for you, and rather than self-diagnosis. So we've talked about a lot of therapies and strategies that these parents and caregivers can do. So that's the bit that these parents and caregivers can contribute or do for their children.
But education, right? Schools, our institutions, another important place that a child spends a lot of their time. So, what role can, our teachers, our educational institutes, schools, what role can they play in the lives of these autistic children? Hmm. Thankfully, you mentioned that or raised that issue because school is not just a place for learning academics. It is in the classroom where we learn many life skills. जैसा आपने बोला, बहुत सारा टाइम, मैक्सिमम टाइम मुझे लगता है बच्चा घर तो ज्यादा टाइम सोने में बिताता है rather than in alert state of mind. Mostly the child is alert, active, aware, and connected at school. And they learn social skills, they learn to compromise, they learn to bargain, and so many other life skills important for their daily communication. So वहीं पे ही उसको अटेंशन भी मिलती है, हेल्प भी मिलती है, कॉम्प्लीमेंट्स भी मिलते हैं, बुली भी मिलती है। ऑल ओवर उसकी पर्सनैलिटी का अगर हम डिस्क्रिप्शन देखें तो वहीं से स्टार्ट होता है कि लोग उसे किस तरह जज कर रहे हैं, लेबल कर रहे हैं, है ना। तो मुझे लगता है कि प्रेपरेशन फॉर एडल्ट लाइफ इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ स्कूलिंग। इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो ऑटिस्टिक बच्चे हैं दे शुड गो टू इंक्लूसिव स्कूल। आपको पता है आज हम मना रहे हैं वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे, और 2024 का थीम भी यही है, मूविंग फ्रॉम सर्वाइविंग टू थ्राइविंग। कि हमें इन बच्चों को सिर्फ इतना का मैनेज, इतना ट्रीट, इतना सोल्यूशन नहीं देने के वो सर्वाइव कर सके और किसी तरह जिंदगी काट के जाएं। नो, दे हैव सो मच इनेट पोटेंशियल, दे हैव सो मच इनर abilities, maybe different from other kids, maybe not on that normal scale decided by society or education system, but we need to emphasize on the need to change the focus from simply dealing with autism to creating an environment, inclusive environment, in which autistic people can also perform well. They can also accomplish, they can also feel proud. So, because children with autism, they have distinct learning and thinking styles when compared to the non-autistic population. There is often a misinterpretation of their behaviors and languages. So, जब हम inclusion की बात करते हैं, at Mind Mentors, we always teach, train, and educate people that inclusion means giving people awareness so that they may learn to provide the opportunity to autistic kids to join in with what they want to, having the choice to live where they feel comfortable and not only doing what someone else thinks they should do. तो हमें एक efforts include करने हैं to facilitate a barrier free environment, informational, attitudinal and physical, हर फ्रंट पे, ताकि हम वो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकें टू ऑल पीपल अराउंड अस। और जब हम इंक्लूजन की बात करते हैं एजुकेशनल सेटिंग्स में, तो सुनने में आता है कि स्कूल्स ने, बोर्ड्स ने, एजुकेशन सिस्टम ने बहुत सारी न्यू पॉलिसीज लॉन्च की हैं, बट ट्रस्ट मी नेहा, पर्सनली जब हम लोग पेरेंट्स से बात करते हैं, जब हम उन बच्चों के स्टिग्मा से, उन बच्चों की बुली से डील करते हैं, तो अभी भी लगता है कि एक बहुत अच्छे टीम वर्क की जरूरत है, एक बहुत एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर की जरूरत है, जहाँ पे हम इफेक्टिव इंक्लूजन ला सके, ना कि सिर्फ पेपर वर्क में वो इंक्लूजन हो। बिकॉज इट डजंट सिंपली मीन प्लेसिंग ए चाइल्ड विद ए डिसेबिलिटी इन ए रेगुलर स्कूल। वो और भी ज्यादा ट्रॉमेटिक हो जाता है बच्चे के लिए अगर उसे वो ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा, वो एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा, वो सपोर्ट नहीं मिल रहा। It refers to providing more options for all children and structuring school in a way which every child, including those who are differently able, can learn. हमें पता है कि नॉर्मल बच्चों में भी हर एज और स्टेज में कोई ना कोई डिफिकल्टी आती है, तो इसके लिए टीचर्स को, एजुकेटर्स को प्रॉपर ट्रेन होना बहुत जरूरी है, ताकि वो डिफरेंट डिफरेंट लैप्सेस को क्रूशली हैंडल कर सकें। हमें इंक्लूसिव करिकुलम में एक ऐसा जेन्युइन रिस्ट्रक्चरिंग करना चाहिए, टीचिंग मेथड्स को मोल्ड करना चाहिए, क्लासरूम ऑर्गेनाइजेशन को थोड़ा सा ऑल्टर करना चाहिए, ताकि वो कॉन्स्टेंटली इन बच्चों की फेवर में काम कर सके। बच्चा अलग है लेकिन टीचर का अगर वे ऑफ हैंडलिंग सेम है, अगर सिलेबस करिकुलम की डेप्थ और उनका टेस्टिंग मेथोडोलॉजी सेम है एक नॉर्मल बच्चे की तरह, तो फिर आप ही बताओ
उस इंक्लूसिवनेस का क्या फायदा है ना? तो कहीं ना कहीं एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग इनकलकेट करनी पड़ेगी इन बच्चों के लिए। टीचिंग मटेरियल भी थोड़ा सा डिफरेंटली अडेप्ट करना पड़ेगा ताकि बच्चे के कैरेक्टरिस्टिक्स और इंटरेस्ट के साथ हम मैच कर सकें। और जब भी टीचर अपने लेसन प्लान तैयार करे, कुछ इंस्ट्रक्शंस इंप्लीमेंट करे, उसको पता हो कि इस पर्टिकुलर बच्चे के साथ ये कंडीशन है, तो उसके लिए मुझे अपनी चीजें वेरी कैसे करनी है, अपनी यूनिकनेस कैसे लानी है इस बच्चे के लिए। तो बहुत मल्टीपल फ्लेक्सिबल मेथड्स चाहिए नेहा, फॉर बोथ टीचर्स प्रेजेंटेशन ऑफ द क्लास एज वेल एज अपॉर्चुनिटीज फॉर द स्टूडेंट्स टू डिस्प्ले व्हाट दे नो और हैव लर्नड। तो आप ये भी मानती होंगी कि ये जो कहना बहुत आसान है, लेकिन मैनेजरियल पार्ट पे, ऑर्गेनाइजेशनल पार्ट पे इन सब चीजों को इम्प्लीमेंट करना वो बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हम लोग हमेशा स्कूल्स के वर्कशॉप्स में और वेबिनार्स में मैनेजमेंट को ये रिक्वेस्ट करते हैं कि दे शुड यूज कोऑपरेटिव ग्रुप्स एंड पीयर सपोर्ट, ताकि वो कैपिटलाइज कर सकें स्टूडेंट्स के डिफरेंसेस को। एक सेंस ऑफ कम्युनिटी नॉर्मल बच्चों में, नॉर्मल टीचर्स में, मैनेजमेंट में आना बहुत जरूरी है, ताकि एक सक्सेसफुल क्लासरूम एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा सके जहां हर बच्चा कंट्रीब्यूट करे, अकेले टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो। हर बच्चा दूसरे बच्चे की रिस्पेक्ट और केयर करे, उसका सपोर्ट सिस्टम बने। बिकॉज इससे फिर हर बच्चा ये भी सीख पाएगा हाउ टू लर्न टू वैल्यू डिफरेंसेस, appreciate commonalities and better understand concepts such as fairness, cooperation, equity, justice। क्योंकि अगर ये हम सिर्फ एडल्ट लेवल पे रखेंगे, सेमिनार लेवल पे रखेंगे, कॉन्फ्रेंस रूम्स में रखेंगे, या जो अब हम कर रहे हैं उस तक रखेंगे, तो वो जो ग्राउंड लेवल पे बच्चे घूम रहे हैं उन तक तो वो चीज पहुंचेगी नहीं। तो बहुत जरूरी है कि हम वो यंगर जनरेशन को भी इस पूरे इनिशिएटिव में साथ लेके चले। सो टीचर उनको भी एज एन असिस्टेंट यूज करें। यूज वर्ड यूज करना अच्छा नहीं रहेगा, यूटिलाइज करें उनकी पोटेंशियल को, उनकी एम्पैथी को, उनकी सेंसिटिविटी को, उनके अंदर एक सोशल स्किल्स क्रिएट करना और एक इंक्लूसिव बच्चे को एक्चुअली इंक्लूड करना उन बच्चों को भी आना चाहिए। बहुत ही अच्छी बात कही मैम आपने कि ये चेंज जो है ये खाली बोर्ड रूम मीटिंग्स या सेमिनार्स तक नहीं लिमिट रहना चाहिए। दिस हैज टू बी एक्चुअली इंक्लूसिव एंड एवरी स्ट्राटा, एवरीबॉडी हैज टू बी इंक्लूडेड। ओनली देन वी कैन हैव फेयरनेस एट दैट लेवल। एंड जितना अर्ली इसको और जितना ग्रास रूट लेवल से इसको इनिशिएट किया जाएगा उतना इफेक्टिव है। एंड दैट इज व्हाट यू नो दिस सीरीज आल्सो फ्रॉम इंस्पायरिंग इनसाइट्स, इफ यू से नॉलेज एंड अवेयरनेस, कि जितना हमें अवेयरनेस होगी चीजों के बारे में, यू नो एट वट एवर एज इट कैन बी, यू नो इट इज गोइंग टू मेक things easier not just for people, their lives, but in society in general. So that is Yes. what our initiative or our effort is. So definitely we've talked about schools playing an important role, or किस तरीके से education system can be more empathetic towards you know children dealing with this situation. So so last question for this series, ma'am, ki broadly you've touched upon a lot of things already, but I would still ask you to talk about how society at large, everybody in their own domain, because a lot of time people feel मैं क्या कर सकते हो इसमें, you know, I am not from medical background, I am no expert, you know, I don't know what can I do, but in general what can a common man in a society do for you know bringing about this fairness, this inclusivity that we're talking about? Very important aspect and scenario, I would say, because we are talking too much about so many things, but it won't be able to happen. That change we want to bring, वो सर्वाइव टू थ्राइव वाला, वो एक पूरे मासेस की जो एक टुगेदरनेस है या एक जॉइंट एफर्ट है, पर्सपेक्टिव का जो चेंज है उसके बिना नहीं लाया जा सकता। बिकॉज एवरीथिंग स्टार्ट्स विद माइंडसेट, यू नो। और जब हमने बात की है पेरेंट्स की जिनके बच्चे ऑटिस्टिक हैं, उस बच्चे की, फिर उससे रिलेटेड प्रोफेशनल्स की, फिर टीचर्स की, एजुकेटर्स की, केयर गिवर्स की, और फिर स्कूल में सभी नॉर्मल बच्चों को भी इंक्लूड करने की, तो ये कोशिश यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस मिशन में इन्वॉल्व कर सकें, एजुकेट कर सकें, ताकि जिनके घर में ऑटिस्टिक बच्चा नहीं है, जिन्हें उसे डील नहीं भी करना पड़ा, उसे भी समझ हो कि मुझे उसे डील कैसे करना है। क्योंकि एज ए पार्ट ऑफ सोसाइटी तो कभी ना कभी एक दूसरे को एनकाउंटर करेंगे, कहीं ना कहीं वर्क प्लेस पे माइल्ड मॉडरेट ऑटिस्टिक
पर्सन उनको मिल सकता है, एज एन एम्प्लॉय, एज एन एम्प्लॉयर, एज ए कुलीग, है ना, तो एज ए सबऑर्डिनेट, तो कितना एम्पैथेटिक होने की जरूरत है। हम बार बार इस चीज पे बात कर रहे हैं कि वी नीड टू बी वेरी मच ओपन, फ्लेक्सिबल, अंडरस्टैंडिंग और इंक्लूसिव, एक्सेप्टिंग, है ना। अवेयरनेस होगी, एक्नॉलेजमेंट होगी, एक्सेप्टेंस होगी, तभी हम अडेप्ट और अप्लाई कर पाएंगे इन चीजों को। सो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट यही है कि ये ना सोचें कि हमें क्या लेना देना, हमारे घर कौन सा ऑटिस्टिक बच्चा है, या हमने कौन सा स्कूल, इंक्लूसिव स्कूल चलाना है, या हमने कौन सा कोई साइकेट्री या मेंटल हेल्थ में जाना है। लेकिन यहाँ नेहा के पास भी ऐसा कोई मिशन या गोल नहीं था, बट स्टिल शी इज टेकिंग दिस इनक्रेडिबल इनिशिएटिव टू स्प्रेड अवेयरनेस थ्रू आउट द मासेस, ताकि हम सब लोग ये जो ग्लोबल लेवल पे एक अवेयरनेस डे मार्क किया गया है, ये सिर्फ हमारी कैंपेन के लिए ना रह जाए, इसका एक प्रैक्टिकल इम्पैक्ट भी हमारी सोसाइटी में नजर आए। क्योंकि यहाँ मैं एक वार्निंग देना चाह रही हूँ, पोस्ट कोविड हम देख रहे हैं कि बच्चों में एडीएचडी, ऑटिज्म, लर्निंग डिसेबिलिटी, एग्रेशन और बहुत सारे मूड डिसऑर्डर्स, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स बहुत ज्यादा स्केल पे नजर आ रहे हैं। तो इस वक्त एज ए सोसाइटी हमें एजुकेट होना, इकट्ठे होना, एक ज्वाइंट पर्सपेक्टिव और विजन और मिशन के साथ ग्लोबल लेवल पे इन चीजों को हैंडल करना हमें सीखना पड़ेगा। हम नहीं सीखेंगे तो हम तो आज निकल जाएंगे, हमारी अगली जनरेशन हमेशा उसका जो भुगतान भुगतती रहेंगी। तो आपने जब इंक्लूसिवनेस की बात की है, सोसाइटी की बात की है, तो फिर चंद लाइनें मेरे दिमाग में बुलबुला रही हैं। अगर आप इजाजत दो तो मैं अपनी लिखी हुई कुछ लाइंस आपके साथ शेयर करना Absolutely, ma'am. It will be a pleasure to hear you. चाहती। जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में भी बताया था कि दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट। तो मेरे को हमेशा ये लगता है कि बच्चे के पर्सपेक्टिव से देखो तो अलग पोइट्री निकल सकती है, मदर के एस्पेक्ट से देखो तो अलग, फादर के एस्पेक्ट से देखो तो अलग। तो अगर ऑल ओवर सोसाइटी की बात करें तो ए समाज, आप कभी नहीं जान पाएंगे कि हवाओं में बहता हुआ चींटी का खाया हुआ पत्ता कैसा होता है। पसलियां टूटी होती हैं, रंग फीका पड़ जाता है, पर आप कभी नहीं जान पाएंगे कि गीली और मिट्टी से सनी हुई धरती की तरह होने का मतलब क्या होता है, जहां कोई बीज नहीं उगते और चिपचिपा पानी बादलों वाले दिन की निराशाजनक छवियां भेजता ही रहता है। आप कभी नहीं जान पाएंगे, क्योंकि आप तो समाज हैं, आप तो वो और लोग हैं। आप कभी नहीं जान पाएंगे उस पन्ने की तरह होने का क्या मतलब है, जहां शब्द बारिश की बूंदों की तरह गिरते हैं और कुछ देर के लिए खेलते हैं और फिर शांत और अर्थहीन हो जाते हैं। आप कभी नहीं जान पाएंगे कि उस दुनिया में अलग होने का मतलब क्या है। आपकी इस दुनिया में अलग होने का मतलब क्या है, जो काले को सफेद से और दोस्तों को दुश्मनी से जानती है, बड़े बड़े जजमेंट करना और लोगों को पहचानती है, लेकिन उस बच्चे से नहीं जुड़ पाती जो बड़बड़ाता है या चुप रहता है। आप कभी नहीं जान पाए, आप कभी नहीं जान पाए। ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल लाइंस मैम, वेरी वेरी एप्ट और बहुत ही खूबसूरत लाइंस हैं। सो आई थिंक जरूरत है जानने की, कोशिश करने की, जानने की। तो जान यस। तो शायद पूरी तरह नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी एक प्रयास कर सकते हैं कि इस इंक्लूजन से, इस अवेयरनेस से हम कुछ इंक्लूजन, कुछ फेयरनेस जो है वो ला सके। सो thank you so very much, Dr. Saini, one more time for taking out time and इतने important issue के लिए इतना simplistic way में समझाना, इतनी अच्छी तरीके से explain करना, adding so much value to people who are facing these challenges or people who can do something about this situation. So thank It's you my so very pleasure. much. It's my pleasure. It's my privilege, dear. Thank you. So thank you so very much, and thank you to all our viewers for your continuous support. We hope that we were able to add some value, create some more awareness with this
episodes, and we'll continue to talk about such pertinent topics even in our upcoming sessions. So please stay tuned, stay connected with us, and have a great day ahead. Thank you so And very if much. I would like to add here, Neha, if viewers or listeners have any question regarding this particular condition, and though we have tried to cover so many aspects through your medium, but still, if they have any questions, they can write to you or they can write to me. So we are always there to support families who are facing this condition. Yeah. Absolutely. Needless to say कि if you have any more queries, कोई Yes. भी और आपके doubts हैं, queries हैं, please do write to us, and Yes. so whatever in our capacity, we will certainly help out in Yes. whichever manner we can. So thank you so very much. One more time, Dr. Saini, for your time and your valuable inputs. And thank you so much, viewers, for staying connected. Thank you so much. Thank you, dear. Thank you. Thank you so much.